अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। सेकंड, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने लास्ट टाइम इस्म की प्रॉपर्टीज की थी। वी हैव डन ऑल ऑफ दैट। आई जस्ट वांट अ लिटिल रिव्यू रिगार्डिंग ऑल ऑफ दैट कि आप लोगों की क्लैरिटी प्रॉपरली हो गई है कि नहीं हो गई है। हम लोगों ने, इफ यू रिमेम्बर, इन अरबिक वी हैव द वर्ड, राइट? ओके, एंड what is the word? Types of word: ism, fi'l, harf, right? Okay. Then we have learned about the properties of ism. property. Rafa, nasab, and jar are properties, नहीं मिस correct or wrong? रॉन्ग वो तो Exactly. Our first property is status, where Rafa, nasab, and jar exist, right? yes Second property is number. नंबर Okay. Third one is gender and type. Okay, all right. Is it? यस ठीक है। अब हम let's discuss about the status for the review. Status basically क्या होता है? What is the status basically? Through status, सिंगुलर या प्लूरल what? नहीं 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 प्रोफानस्टर Exactly. Basically, it's a role play. Like in the sentence, we need to see the three things. That what is the doer? What is the जी detail? मिस ओके And third is possession. Like for instance, possession, what possession means? Do you know about it? ऑफ के बाद जो वर्ड Exactly. आता है जो ऑन कर रहा होता है Exactly. Like after of. Okay. Like let's discuss with the example. For instance, if I would say Sajid drank the juice. Okay, so here can we check what is the Rafa? साजिद Exactly. Sajid is Rafa. Okay. Then we will see, let's say Amir killed Sajid. Here, what is Sajid? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट Which status? नसब Exactly. यहाँ साजिद नसब है. Let's say Sajid's book is torn. यार यानी साजिद की बुक ऑफ साजिद हाँ, साजिद की बुक फट गई है. तो साजिद इज jar Exactly. So here Sajid is jar, because if I would say Sajid's book, how would I say? Book of Sajid, right? yes So in this way, we can easily know, we can easily figure out that how can we describe the status. So doer is Rafa, details are Nasab, and possession is jar. possession If I would ask you that what would be the alternative definition of ism, fail, and harf?
what would be the alternative definition? Is some will be subject. Like if the word is not, isn't fail and harf, then it would be ism. Got it? Okay. Okay. If Hmm. the word isn't ism and harf, it would be fail. As we all know that we have only these three things in Arabic, right? So we are not supposed to go outside from these three things. All right? And the Okay. word, if the word isn't ism and fail, that would be harf. Got it? Yes. I hope you understood. इसके बाद हम देख लेते हैं कि let's say हम ड्रिल करते हैं एक. Let's do some drill. एक second. Yes. यहाँ पे हम let's start. The. What is the? बस ये तो स्पेसिफिक बनाता है किसी चीज को. हर्फ होगा फिर. Is it fail or ism? हाँ वही. Is हाँ, it fail fail or है. ism? No miss. So what would हर्फ. would it be? हर्फ होगा. Yes, it would be harf. Wait a minute. Okay. All right. So this is what? एक सेकंड में इसका कलर कलर्स किधर हैं इसके? Okay, fine. The is jar. Now read the sentence, Naveen. The teacher entered the classroom. The teacher entered the classroom. So how would you figure out that what is ism and what is jar and other things? The teacher is Rafa. Classroom is Nas. Okay. The teacher entered the classroom. What is the entered? ये तो फेल है ना. Exactly. All right. His student was sleeping soundly. His तो नस्ब हो गया. His nasb hai? Are you sure? नहीं जर. Exactly. Student of his है ना? Then Yeah. student. His student was sleeping sound. अच्छा. Soundly noun है क्योंकि वो कोई adjective Student है. है. Student object है. Are you sure? जी. Student object कैसे? नहीं. Student तो subject है. Student is subject. तो ये His student. subject Student of रफा है. his. So it would be Rafa. रफा. लेकिन मैं Was. soundly भी तो What? was भी जर है. Sleeping.
तो फेल है। स्लीपिंग क्या है? फेल है। करेक्ट। साउंडली साउंडली भी रफा है। कैसे? साउंडली साउंडली इसम है, तो इसम डुअर होता है, तो डुअर रफा होता है। ये नहीं, हमने अभी डुअर। पढ़ा ना, डिटेल्स। बस साउंडली इसम है। इसम तो है, सॉरी। इसम तो है, बट रफा है, नसब है या जर है? अभी हमने ऊपर पढ़ा डूअर, डिटेल्स और ठीक है, ये डिटेल है, फिर ये मतलब ये नस्ब है। ऑब्जेक्ट हो गया आपकी नस्ल है। साउंडली नस्ब इज डिटेल। डिटेल है, नस्ब है। एग्जैक्टली। हमने ये देखना है कि डिटेल्स क्या है। जितनी भी डिटेल्स हाँ, एक्स्ट्रा दी हुई हैं वो सब नसब में आती है, ठीक है। ही थ्रू ठीक अ है। पेंसिल। He threw a pencil. He Zainab, jar you also can tell me, Sumaira. Hurry up. It means there might be some confusion in your head. That's why you are taking so. ही रफा है, रफा है, क्यू इज फेल, क्यू फेल, आ जर, पेंसिल 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 रफा नहीं नसब। He threw a pencil. उसने पेंसिल को फेंका या उसने पेंसिल फेंकी, ठीक है। ही रफा, क्यू फेल है, ही जो है वो आपका रफा है। तो थ्री डिटेल है, तो वो नस्ब है। देखिए ही क्या है, पहले मुझे ही का बताएं। रफा है। ही रफा है बिकॉज ये सब्जेक्ट है ना। और जी। वैसे इसम है, फेल है या हर्फ है? इसमें इसम इसम। ओके। इसम है और रफा है। थ्रियो, डिटेल है, थ्रियो डिटेल है। नस्ब है और फेल है। आर यू श्योर? नहीं नहीं, फेल है और फेल है, नस्ब है। एग्जैक्टली। ओके, अ पेंसिल। ऑब्जेक्ट है। एग्जैक्टली। तो ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या होता है? नसब, ठीक है। एंड द स्टूडेंट वोक अप सडनली। यहाँ तो स्टूडेंट रफा है। स्टूडेंट जिस पे काम है, तो ऑब्जेक्ट स्टूडेंट क्या है? रफा है। स्टूडेंट रफा है। एग्जैक्टली। एंड इसम है, ठीक है। वोक समय अप इज फेल। अब डिटेल, वो नस्ब है। सडनली और सब भी इसमें सडनली नस्ल, नस्ल। इसम। इसमें और डिटेल्स है, डिटेल्स है, तो नस्ब। अच्छा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि इसमें हमेशा रफा हो। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट आई वांट टू से कि आपने ये देखना है कि हमारे पास, देखिए हम, मैंने शुरू में स्टार्टिंग में आई हैव गिव यू द क्लैरिटी दैट एवरीथिंग विच इज नॉट फेल, विच इज नॉट जर हर्फ, everything is coming in ism. Like it would be an idea, it would be adverb, verb, adjective, everything, right? मुझे लगा इसमें हमेशा रफा होगा। आपने ये देखना है कि इसमें हमेशा वाली कोई चीज है नहीं ना, अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी ऐसी भी चीजें आगे आएंगी दैट वो सिर्फ हमें समझनी पड़ेंगी। देयर देयर वुड नो लॉजिक as the Arab says in that way, so we should have to get the understanding towards that. So for that purpose, we need to get the clarity ke suddenly, soundly, these kind of words also comes in nasab, because it's showing the details. Whatever the is giving the details, we need to see that if there would be a detail, either although it would be the ism, that would be the nasab. Okay. रफा वो होती है चीज जो सब्जेक्ट होती है, डूअर। हमने ये देखना है एग्जैक्टली, वी शुड हैव टू सी इन द सेंटेंस दैट व्हाट इज द डूअर, इधर इट वुड बी इसम और एल्स, ठीक है। ऑल राइट।
Then the student's mother. The student's mother means mother of Student's student. mother of student. Mother जो है Mother mother of of student student. student student जो है What is jar? mother doer jar है Mother is jar? Student, no, Student student is is jar. there, mother is Rafa. Exactly. mother of Mother is Rafa, right? Called the fail the teacher. Called the teacher the next day and confronted him angrily. Called the teacher. Teacher क्या है यहाँ पे? सब object है सब नस्ब Object है. the next Okay. detail है वो नस्ब है The next day and confronted him angrily. miss the next detail है यहाँ पे Exactly. नस्ब Confronted him. Confronted भी fail आ गया. Him angrily भी fail है nasab. Angrily nasab. Details. ठीक है? The teacher lost his job. Teacher is subject Rafa. Lost, fail, job, fail nasab. नस्ब Got it? अच्छा मिस जॉब क्या है जी? जॉब क्या है Job is nasab. The teacher lost his job. Teacher ने अपनी जॉब खो दी. क्या खो दिया उसने? जॉब खो दी. तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ हमारे पास? डिटेल समझ आ रही है? जी मिस जी सुमेरा, ज़ैनब. Shall I erase it? जी. Okay. So now on. Let's do some exercise practice and then wait a minute. All right. अब हम यहाँ पे देखते हैं. I told you guys that this is singular and these are combos. साउंड All right. This is miss. masculine and this is feminine. So tell me, if I would say, tell me its properties. अब हमारे पास properties क्या है? Let me clear to you again. Properties हमने अभी ऊपर देखी है ना? status gender number type Exactly. Wait. ये हमारे पास 4 चीजें हैं, ठीक है? नंबर हमारे पास क्या हमने देखना है नंबर में? सिंगुलर और प्लूरल साउंड और कॉम्बो एग्जैक्टली. जेंडर में मैस्कुलिन मैस्कुलिन फेमिनिन एंड टाइप में डेफिनेट टाइप में हमने देखना है कॉमन और प्रॉपर. ओके ठीक है? कॉमन और प्रॉपर. ठीक. इसको हम थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ इसको भी डिस्कस कर लेते हैं. लेट्स से फॉर इंस्टेंस अगर मैं कहती हूँ आपसे अ बॉय या अ बुक कह लेते हैं. अ बुक. इज इट कॉमन और प्रॉपर? कॉमन कॉमन
common. If I would say the book, Proper. तो ये हो गया प्रॉपर. ठीक है. ओके, अब हम इसको अरेबिक में कैसे बोलेंगे? किताबुन, किताबुन अल किताब. एक सेकेंड. जी हम ऐसे कहेंगे. अ, यहाँ पे तो अल नहीं आएगा, दा के साथ आएगा ना अल। अब ऊपर तो एग्जैक्टली. खाली किताबुन आएगा। वेट अ मिनट, इससे कर लेते हैं. ओके, अ बुक को हम कैसे कहेंगे? किताबुन. किताब. अब ये बताएं मुझे कि हम इसको एंडिंग स्टेटस क्या देंगे? इसको हम ये रफा ही देंगे। किताबन होगा, जब कुछ किताबुन बटन होगा, आप या किताब किताबुन. होगा? किताबुन। क्यों? देखिए इसमें ना कॉमनली जो नाउन और ना हर्फ है. नहीं, इसमें कॉमन और प्रॉपर का कोई भी सीन नहीं है. अगर हम इसका स्टेटस कोई भी लगाते हैं ना, तो उसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है. लेट मी क्लियर टू यू, दिस इज द टिप. यू गाइज हैव टू नोट डाउन द टिप इफ यू आर मेकिंग द नोट्स, बिकॉज इट वुड हेल्प यू अलॉट. ये एक टिप है कि अरबिक में, इन अरबिक ऑलवेज वी यूज टू, दिस इज बाय डिफॉल्ट, we use rafa. If we don't know anything that in terms of status, so whatever we write, we by default we put rafa at the end of the letter. There is no condition, though, no, nothing at all कि अगर ये होगा तो यूं होगा. आपने बाय डिफॉल्ट जो है वो किताबुन ही लिखना है इफ यू डोंट नो द स्टेटस ऑफ एनी वर्ड. ओके, गॉट इट? समझ आई बात? जी जी, वेयर आर यू गाइज? जी जी मिस यहाँ पे वो वाला रूल नहीं अप्लाई होता कि ना अगर ये हर्फ भी नहीं है, इसम भी नहीं है, तो ये रफा ही है. नहीं, इसमें तो वो है नहीं। तो इसमें लेटर, इसमें हमने स्टेटस देखना है ना. अभी इसकी बात, वर्ड की बात नहीं हो रही ना. अभी हमने देखना है कि लास्ट में एराब कौन सा लगेगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है मिस. दिस इज कॉमन. प्रॉपर हम कैसे लिखेंगे अरबिक में? अल किताबु. अल, आगे आखिर में क्या आएगा? बु. अल किताब. अम्मा पेश। क्योंकि या तो हम अल लगा सकते हैं या फिर हम तनवीन लगा सकते हैं. तन्वीन. दोनों में से एक चीज लगती है. दोनों चीजें एट अ टाइम नहीं हम अप्लाई कर सकते. ठीक है, क्लियर? जी मिस. जी समझ आ गई? जी मिस. इज देयर एनीथिंग, एनी कंफ्यूजन? अच्छा, अब दूसरी चीज हमने ये देखनी है कि जब हम 4 प्रॉपर्टीज देखेंगे किसी भी वर्ड में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दैट ऑलवेज we should always look for the combos before seeing the sound. हमें सबसे पहले जो है ना कॉम्बिनेशंस को देखना है ताकि हम कंफ्यूज ना हो जाए. इफ देयर इज नो कॉम्बिनेशन इन द वर्ड, so it would be the sound. Got it? समझ आ गई? हमें किसी भी वर्ड के अंदर पहले ये चेक करना है कि उसमें कॉम्बिनेशन क्या है। अगर First नहीं of है all, तो साउंड देखेंगे आप। yes, first of all, we need to see the combinations. If there is no combination in the word, then we will go for seeing, या हम recognize करेंगे कि either it would be the sound. Like for instance, let me ask from you
that हम इसको देख लेते हैं चार्ट को थोड़ा सा. Tell me about the 4 properties of this. This is Muslimin. ठीक है. या हम अभी Okay, एक सेकंड Yes. ये हमने अभी बाद में इसको करना है. जार. इसमें ये इसका मुझे बताएं आप. इसका बताएं. 4 properties of Musliman. हम यहाँ लेट्स से कर लेते हैं. Okay. Zainab, you tell me Musliman. Tell me the 4 properties. Musliman, okay, status is nasab Okay. and number is singular because sound से हमें singular पता चल रहा है. कॉम्बो होते हैं तो फिर डुअल या उसमें जाते हैं. सिंगुलर हो गया. Alright. और जेंडर इज मेल. ठीक है. इसमें गोलता नहीं है. और लास्ट टाइप इज तनवीन है. अल नहीं लगा हुआ तो वो टाइप इसकी कॉमन है. Good job. Okay. Now, Naveen, you tell me जी. Muslimatani. ये कॉम्बो है, कॉम्बिनेशन है. What is और the status? ये नस्ब है. Is it nasab? नहीं, ये रफा है. Exactly. Rafa. All right. Number? ये रफा है और प्लूरल है. Plural है. Are you sure? जी, मसना है, प्लूरल है पूरा. Dual है ना? हम्म. Dual है. और फेमिनिन Plural नहीं है. Dual है. डुअल है. तस्निया. मुसन्ना कहते हैं, मुसन्ना कहते हैं. तस्निया कहते हैं, मुसन्ना भी कहते हैं और तस्निया भी कहते हैं. ठीक है तस्नीम. जी. ओके. इट्स डुअल. ऑल राइट. जेंडर. फेमिनिन ओके. और कॉमन. एंड कॉमन. कॉमन. ओके. सुमेरा. सुमेरा इज विद अस नाउ. मेरा मुझे आवाज बहुत कम आ रही है. मैं रीज्वाइन करती हूँ. मुझे बहुत ही मुश्किल से समझ आ रही है. सुमेरा, आपके डू यू हैव एनी कंफ्यूजन इन इट? कोई कंफ्यूजन है? रीज्वाइन करेंगी सुमेरा क्योंकि वो अभी लेफ्ट किया मैंने. ओके. सुमेरा को शायद समझ नहीं आ रही या फिर उनके सिग्नल इशू भी हो सकता है. चलें ठीक है. नवीन एंड Zainab, tell me if there would be any confusion, so otherwise we will move on. Got it? You guys understood about this? मिस, ये सारा तो समझ आ गया. वो जो आपने पहले ड्रिल करवाई थी ना, तो आप हमें होमवर्क में भी कोई 1-2 ड्रिल दीजिएगा, तो फिर हम उसको कर लेंगे Exactly. I will प्रैक्टिस सेट. definitely share some drill with you, inshallah. Let's. जी स्मेरा पूछिए. मुझे आवाज आ रही है. Okay. Samira, I was asking. Tell me this. What are the properties of ism? इसकी मुझे properties बताएं. Like, what is the status, number, gender, and type? स्टेटस इसका जर है. Okay. और जो नंबर है, नंबर मतलब साउंड या कॉम्बो बताना है. Singular है या plural है या dual है? सिंगुलर. Okay, good job. Gender, और जेंडर फेमिनिन है. type, टाइप मतलब कॉमन या प्रॉपर कह रही है. mm-hmm, कॉमन. common.
अगर मैं यहाँ पे अल लगा देती हूँ तो ये कॉमन है या प्रॉपर है? प्रॉपर है। Exactly. So we should have to be careful for that. Okay. I hope everyone got the clarity towards it. So let's move on. ये वाला जो काम है ना, ये आप लोगों से मैं शेयर कर लेती हूँ, और ये सेंटेंसेस हैं. यू गाइज हैव टू keenly observe that where is the rafa and nasab and jar. So you guys have to do about this. Okay. और बल्कि मैं इसको ना भी कर लेती हूँ, एक सेकेंड. Firstly, who will tell me Muslim Maini? What is it? Rafa, Nasab or Jar? नस Nasab and Jar, both. जी जी नस पूछो. Okay, here we can see Muslimaini, Muslimaini, Muslimataini, Muslimataini. Got it, Naveen? जी मिस. All right. Okay, Muslimataini, what is it? ये भी नस्ब और जर होगा. ये भी Exactly. दोनों. Muslimatun, रफा. रफा. exactly. Muslimani, नस्ब जर. are you sure? No, it's Rafa. It's Rafa. It's Rafa Rafa dual. male. See, Oh. मेरा हमने सबसे पहले कॉम्बोज देखने हैं. हम अगर सिर्फ लास्ट लेटर देखेंगे ना तो हम फंस जाएंगे. कॉम्बोज देखने के बाद हमने देखना है कि ये अगर कॉम्बो नहीं है देन वी विल गो फॉर द साउंड. अभी आपने साउंड रिकॉग्नाइज किया है तो ई देखकर आपने समझा कि ये जर या नसब है. सो वी विल डू द रॉन्ग थिंग. ओके. सो दैट्स व्हाई फर्स्ट ऑफ ऑल गो फॉर द कॉम्बोज. कॉम्बो से फिर क्या पता चलेगा? सपोज ये आपको कॉम्बो देखिए, है. आपने मुस्लिमानी को आपने कहा जर है, इसलिए कि इसके जी जी एंड में जेर आ रहा है. जी. अगर हम इस तरह रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करेंगे तो वी विल गेट स्टक. Firstly, we will see that is it the combo or not? Is it the dual of Rafa, Nasab or Jar or not? And then we will go for the sound that अगर ये if it is not the combo, so it would be the sound. Then फिर आप देखेंगे कि अगर जेर आ रही है आखिर में तो फिर ये नसब और जर ही होगा. लेकिन अगर जबर आ रही है तो फिर ये नसब होगा. और अगर ये क्या नाम है इसका, पेश होगा, दम्मा होगा, तो फिर ये रफा होगा. समझ रही है बात? ये बड़ा कंफ्यूजन नहीं, क्रिएट हो अब ये जाएगा अगर कॉम्बो, हम. जी बोले. ये कॉम्बोज है, कॉम्बो भी है, डुअल भी है. अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये रफा है? क्योंकि आप ये वाला चार्ट याद करेंगी तब पता चलेगा. आपने अगर ये चार्ट याद अच्छा किया हुआ ठीक है है. तो आपको ठीक पता ठीक होगा. ठीक. देखिए मुस्लिमुन, अगर मैं ये यहाँ पर मैं सिर्फ इस जेर को देखूंगी ना, ये जो ये जेर दिया हुआ है, अगर मैं सिर्फ इसकी तरफ देखूंगी तो फिर मैं यही समझूंगी कि ये क्या है, जर है. मैं कभी भी नहीं जान सकूंगी कि ये रफा का डुएल है. These are the combos. That's why I'm telling you that you have to first go for recognizing the combos, and then फिर आप अगर combo नहीं है, यानी अगर ये मुस्लिमानी के बजाय ये होगा मुस्लिमी, मुस्लिमी होगा. ठीक है, अगर ये होगा मुस्लिमी, फॉर इंस्टेंस मैं ये लिखती हूँ मुस्लिमी, तो फिर ये जर होगा. लेकिन अगर ये आनी है और ये कॉम्बो बन रहा है, या आईनी है या ईना है, कॉम्बो बन रहा है, तो मुझे ये देखना है कि इज इट द कॉम्बो. अगर कॉम्बो नहीं है देन आई विल गो फॉर द. और अगर मुझे वो मुस्लिमातुन वाला चार्ट याद है तो आई कैन इजीली फिगर आउट, क्योंकि मुझे सिंगुलर, ड्वेल और प्लूरल सब याद है. ठीक है सुमेरा, जी डिड यू गेट इट? जी इंशाल्लाह. ओके, तो इसको मैं फिर शेयर कर देती हूँ आप लोगों से. आप का ये होमवर्क होगा इंशाल्लाह.
ये आप लोगों ने इसके ऊपर एडिट करके कर लें या कॉपी पे कर लें एज यू विश, ठीक है? ये आप लोगों का आज का होमवर्क है। स्टिल इफ देयर वुड बी एनी कंफ्यूजन तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कुछ वर्ड्स हम कर लेते हैं यहाँ पर फॉर द सेफ साइड के अंडरस्टैंडिंग और हमारी क्लियर हो जाए। लाइक फॉर इंस्टेंस इफ आई वुड से ओके, इसका मुझे इसकी प्रॉपर्टीज बताएं। स्टेटस क्या है इसका? टॉप ऑफ ओके, देन नंबर, प्लूरल जेंडर, मेल